ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجیے۔ حسن رضا کے علاقے برار میں چمکنے کا سبب میں بتا دوں بابا کمبل پوش ہی عطا تیری ہے، میں بتا دوں بابا کمبل پوش ہی عطا تیری ہے۔ جناب نعرہ لگا دیے جھوم کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حسن رضا صاحب مصباحی، حضرت علامہ حسن رضا صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء باوقار، ہماری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ہی عاشقان غوث و خواجہ و رضا، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے بھی زیادہ قابل مبارکباد آپ ہیں، اس لیے کہ راتوں میں جاگنا، نعت و منقبت پڑھنا، تقریریں کرنا ان کو تو سکھایا ہی گیا ہے، لیکن آپ نے کسی محفل میں آ کر اتنا وقت دینا، یقیناً آپ کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا علماء کرام کے حوالے سے۔ دیکھیے لگ بھگ 11 بجنے کے لیے جا رہا، زیادہ وقت تو ہے نہیں، اور ویسے بھی زیادہ الحمدللہ اپنے یہاں کے سننے والے یا بولنے والوں کی عادت بھی نہیں ہے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی، چونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام علماء کرام، ہم سب کا یہی یقین اور یہی وجدان ہے کہ ادھر ادھر کی گفتگو کے بجائے کام کی 4 باتیں ہو جائیں وہی بہتر ہے۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آئیے ہم سب مل کر ہدیہ سبل ختم الرسل مولائی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں و آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ہم اور آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی چمک کا نام سیدنا بابا کمبل پوش، اس شہر کے کرم کا نام سیدنا بابا کمبل پوش، اور اس شہر کی سنیت کا نام سیدنا بابا کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرات، پہلے سنانے والوں کی کمی ہوتی تھی، سننے والے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ یہ حضرت کا ہی کرم ہے کہ آج ہمارے شہر کے اندر ایک سے ایک بہتر آواز کے مالک اور ایک سے ایک بہتر تقریر کرنے والے خطیب، الحمدللہ یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے جس کو ہم لوگوں نے قبول کیا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے شہر سے کافی لوگ ابھی گئے تھے بغداد شریف، اور آپ لوگ تو وہ ہیں کہ آپ نے ابھی بغداد کے زیادہ تر کثرت کے ساتھ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بغداد جا کر غوث اعظم کے گنبدوں کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور نہیں کیا ہے، لیکن اس محفل میں ایک بیٹھا ہوا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے، عزت مآب علی جناب الحاج سید عبدالغفار صاحب قبلہ، کہ ابھی وہ
غوث اعظم کے گنبد کی زیارت کر کے آئے ہیں، اور اس حوالے سے بلکہ یہ کہوں کہ علماء کرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دوں، دنیا میں 3 ہی عمارتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں 3 ہی ایسی عمارتیں ہیں جن کے زیارت کرنے سے، صوفی رضوان صاحب کی بلا آپ توجہ دیں گے اس لیے کہ آپ کی ہی فکر کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ صوفیہ کے قلم نے لکھا ہے۔ 3 جگہیں، ایک خانہ کعبہ کی زیارت عبادت ہے، ایک روضہ نبی کی زیارت عبادت ہے، اور ایک سیدنا غوث اعظم کے گنبد کی زیارت عبادت ہے۔ ایسے ہی وقت کے مجدد نے نہیں کہا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ جانتے ہیں صوفیہ لکھتے ہیں جس اسٹیج پر میں بیٹھا ہوں، اگر اس چہرے پر میں بیٹھا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا چہرہ جا رہا ہے۔ اگر میں مجمع سے پوچھوں تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو معلوم ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم کا روضہ کدھر ہے، سیدنا غوث اعظم کا مزار مقدس کدھر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن کثرت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کروں، دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، لوگوں کو بتایا، اور یہی بتایا کہ ایک انسان کھڑا ہوا خانہ قبلہ کی طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھی۔ یہ اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن بھی ہے، قرآن والا نبی بھی ہے، اور وہی نبی غوث اعظم کے سب شکل میں دینے والا ولی بھی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اسی عقیدے سے بیان کر دوں۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھا گیا کہ چہرہ اس کا خانہ قبلہ کی طرف ہے، اور جب اس نے سلام کو پھیرنے کے بعد فوراً ادھر مڑ گیا، یعنی پتہ یہ چلا اب پچھم اور دکھن کے کونے میں مڑ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھوں پر چہرے پر پھیر لیا تو تھوڑا سا اور مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب ادھر کھڑا ہو گیا، پوچھنے والے نے پوچھ لیا ادھر کیا کر رہا تھا، ابھی ادھر کیا کر رہا تھا، اور اب ادھر کیا کر رہا ہے؟ تڑپ کر مومن کہتا ہے ادھر رب کے لیے سجدہ کر رہا تھا، ادھر محبت رسول میں کھڑے ہو کر نبی کا عشق پیش کر رہا تھا، اور ادھر کھڑے ہو کر غوث اعظم کی غلامیت اپنے سینے پر لکھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ حسن رضا صاحب مصباحی، عطائے بابا کمبل پوش، عطائے بابا کمبل پوش۔ الحمدللہ کہیں بھی اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں علماء تو بڑی بڑی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے جملے بولے جاتے ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے نعرے لگتے ہیں۔ بڑے ہی بات فخر کی کر رہا ہوں، میرا باپ میرے لیے اسٹیج سجا رہا ہے، میرا بھائی میرے لیے اسٹیج سجا رہا ہے، میرا بچہ میرے لیے اسٹیج سجا رہا ہے، میری قوم آج کرسی دے رہی ہے، میری قوم آج ہار دے رہی ہے، میری قوم میرے ہاتھوں میں پھول دے رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آج باپ بھی عزت کر رہا ہے، آج بھائی بھی عزت کر رہا ہے، آج ساری دنیا عزت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے، روضہ رسول سے آواز آتی ہے اے لوگوں سنو، یہ عزت کسی کو نہیں ملتی ہے تو مدینے کی غلامی کے صدقے میں ملا کیا کرتی ہے۔ آج باپ بیٹے کی غلامی عزت کر رہا ہے، لیکن آئیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جہاں سے مجھے تقریر کرنا تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے اندر ایک انسان لیٹا ہوا ہے، اور لیٹا ہوا انسان اچانک اٹھ جا رہا ہے، قبر کے اندر کھڑا ہو رہا ہے، اور کھڑے رہنے کے بعد پورے قبرستان کے اندر اعلان کر رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں
हजरत ये तो बता दीजिए कब्रिस्तान के अंदर क्या मुर्दे भी किसी की बात को सुनते हैं? तो मैंने कहा काश इस्लाम के करीब आते तो तुम्हें ये मालूम हो जाता कि मुर्दे तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। नबियों के नबी ने कहा है, रसूलों के रसूल ने कहा है, ताजदारे मदीना ने कहा है कि कब्रिस्तान में दाखिल हुआ करो तो पहले सलाम क्या करो। या रसूल अल्लाह क्यों? क्या सलाम का जवाब मिलता है? ये तो मुर्दे हैं। रसूल पाक मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं मुर्दा मुर्दे के लिए सोच सकता है, जिंदा जिंदा के लिए कभी ये नहीं सोच सकता है। ये मेरा काम है, मेरी गुलामियत में जो मोमिन आ चुका है वो कभी मुर्दा नहीं, कयामत तक के लिए जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा ही रहेगा। सलाम का जवाब भी मिलता है और यही रूह घर पर भी आती है। वो कितना खुशकिस्मत मुर्दा है जो आज कब्रिस्तान में लोगों से कह रहा है ऐ लोगों उठो देखो मेरा बेटा मेरे लिए रब की सना बयान कर रहा है। ऐ लोगों देखो मेरा बेटा स्टेज पर बैठा है, मेरा बेटा कुर्सी पर बैठा है, आज मेरे लिए दुआएं मांग रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया में वो बाप कितना खुशनसीब है कि दुनिया से चला गया तो उसका आज बेटा आलिम की शक्ल में बनकर दुनिया के सामने खड़ा रह रहा है और सिर्फ अपने बाप के लिए नहीं बल्कि दुनिया में हर इंसान के लिए दुआएं मगफिरत करता हुआ नजर आ रहा है। आपने माहौल देखा, दुनिया से जाने वालों सुनो, 4 दिन की दुनिया है, हमको जाना है, आपको जाना है। बड़े से बड़े मुहद्दिस चले गए, बड़े से बड़े मुफक्किर चले गए, बड़े से बड़े मुअल्लिम चले गए, बड़े से बड़े टीचर चले गए। दुनिया का हर इंसान जाएगा, मगर मैं आप एक चीज पूछ सकता हूँ आपसे कि दुनिया में इंसान रहता है तो बड़ी तैयारियां करता है, दुनिया में इंसान रहता है तो बड़ी तैयारियां करता है। आप कहेंगे कैसी? ऐसी तैयारी है, एक मंजिल बनाई दिल न भरा, डबल कर दिया दिल न भरा, तीसरी मंजिल कर दी और तीसरी मंजिल को देखकर अपनी आंखों को ऊंचा करके फख्र महसूस करता है। 4 दिन की जिंदगी के लिए एक हवेली में सुकून न मिला तो 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली और जब बिल्डिंग में ही सब्र न हुआ तो दरवाजे पर 4 व्हीलर लाकर खड़ी कर दी। अब कदम पड़ता है तो गाड़ी में पड़ता है, अगर इससे भी चैन न पड़ा, अगर इससे भी पेट न भरा तो ये बंगला छोड़ा दूसरा बंगला अख्तियार कर लिया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि दुनिया की जिंदगी के लिए इतनी तैयारी करने वाले तेरा यकीन नहीं है? क्या तेरा ईमान नहीं है कि ये सब कुछ छोड़ कर जाना है? और जब चला जाएगा तो ना ये बिल्डिंग दुआ करेगी, ना ये हवेली दुआ करेगी, ना ये बिल्डिंग दुआ करेगी, ना हवेली दुआ करेगी, ना गाड़ियां दुआ करेंगी, दुनिया का कोई भी दुआ नहीं करेगा। दुआ वही करेगा जो बच्चा तूने मदरसे में अपने लिए रब के लिए भेजा था, दुआ वही करता हुआ नजर आएगा। तुमने बेटों को इंजीनियर बना दिया, तुमने बेटों को मास्टर बना दिया, तुमने बेटों को वकील बना दिया, तुम्हारे पास पैसा था तुमने सब कर लिया। गरीब पर नजर रखते हो कि इसका बच्चा दारुल उलूम में जाएगा, लेकिन याद रखना गरीब जब दारुल उलूम में पहुंचता है तो गौस की गौसियत भी मुस्कुराती है, रसूल की रिसालत भी मुस्कुराती है, रब की रजा भी मुस्कुराती है, रब की रहमत भी मुस्कुराती है। बड़ा वक्त का आलमिया है। उलमाए कराम अगर मेरी बात को समझें तो मेरा साथ दे, मैं एक चीज बयान करना चाह रहा हूँ। आजकल का तो माहौल ऐसा हो गया है कि दारुल उलूम से बच्चा निकला, निकलने के बाद आलिम बन गया, आलिम बनने के बाद हजारों की महफिल में दस्तार दे दी गई, जुब्बा पहना दिया गया, उसके हाथ में सब कुछ दे दिया गया और देने के बाद अब बारी आती है कि दारुल उलूम से पढ़ के निकला है बच्चा, 20 साल की उम्र को पार कर रहा है, अब इसका रिश्ता कर दिया जाए, अब इसकी शादी कर दी जाए। अल्लाह अकबर। वक्त का आलमिया है। बड़े अफसोस की बात है, दाढ़ी वाले के लिए हजारों घर देखे जा रहे हैं। कभी बाप इनकार कर देता है, कभी भाई इनकार करता है। अब तो वक्त ऐसा हो गया है कि बच्चियां इनकार कर रही हैं। वो कहती है चेहरे वाला लड़का नहीं चाहिए, मौलाना नहीं चाहिए, ये आलिम नहीं चाहिए, ये हाफिज नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा सुन, काश तेरे अंदर गौसे आजम की माँ की सिफत होती, काश तेरे अंदर हजरत फातिमा की सिफत होती, काश तेरे अंदर हजरत खदीजा का तरीका होता तो तू ये नहीं कहती कि मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने वाला
हीरो चाहिए, बल्कि तू ये कहती अरे सुन वो बच्चे और हैं जो आज चमक रहे हैं लेकिन रात में इनके हाथों में जाम भी नजर आते हैं, रात के अंधेरियों में इनके अंदर शराब भी नजर आती है, मगर एक दारुल उलूम से निकलने वाला बच्चा चेहरे पर नबी का नूर लेकर आता है। बच्ची इनकार कर देती है कि मुझे आलिम नहीं चाहिए, मुझे हाफिज नहीं चाहिए, मुझे दाढ़ी वाला नहीं होना, मुझे टोपी वाला नहीं होना। आखिर वजह क्या है? आओ मैं आपके सामने उलमा के हवाले से एक हदीस पाक याद आ रही उसको बयान करूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं मुसलमान वाले बच्चे को मुसलमान बना ले, उसके बाद इंजीनियर बना देना। पहले मुसलमान बना ले, उसके बाद डॉक्टर बनाना ला, पहले मुसलमान बना ले, उसके बाद मास्टर बना ले। आजकल हाल तो ये हो गया है, बड़े बड़े स्टेज लग रहे हैं, फलां यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, फलां यूनिवर्सिटी से वो आ रहे हैं, ये आ रहा है। मैंने कहा जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, कुरान कहता है नीचे बैठ तेरा ऊपर मकाम नहीं है। ये जाहिल हैं जो जाहिलों के लिए स्टेज सजा रहे हैं, ये को कंबल पोश के मानने वाले हैं जो आलिमों के लिए स्टेज सजाते हुए नजर आ रहे हैं। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब मिसबाई आताए बाबा कंबल पोश बड़े बड़े पोस्टर फोटोओं के साथ आते हैं, मगर तुमने चेहरे देखे होंगे कि उन चेहरों पर रौनक नहीं है। आखिर क्या वजह है? आइए हम आपके सामने अर्ज कर दें। गौसे आजम की गुलामियत में बैठकर आपके रोजे के सामने खड़े रहकर कहते हैं हुजूर ये तो बता दीजिए, बड़ी बड़ी जबान चलाने वाले हमने देखे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हमने देखे हैं, मगर उनकी जबानें भी बहकती हैं, उनके कलम भी बहकते हैं, उनके कदम भी बहकते हैं, तो अंदर से आवाज आती है जिसके चेहरे पर नूर नहीं है, जिसके सीने में ईमान नहीं है, उनकी जबानों में चाशनी कहां से आई है? चाशनी तो वही होगी जहां रसूल की गुलामियत होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ो, मैं बात ये अर्ज कर रहा था, काश हमने बच्ची को अपने मदरसे में पढ़ाया होता। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बच्चियों को डॉक्टर न बनाओ, बनाओ डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर से पहले अपनी बच्चियों को जरूर इल्म दीन सिखा दो, इसलिए कि जहां इल्म दीन होता है वहां जवाब क्या होता है? आओ वही मदीना है जहां हमारा ईमान कुर्बान हो जाता है, वही मदीना है जो रसूल पाक का शहर कहलाता है, ये वही मदीना है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आया करते हैं, यही मदीना है। और इसी मदीने में मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में आका ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद मेरे आका बैठे हुए देख रहे हैं। एक मस्जिद के कोने में एक आदमी बैठा हुआ है, एक उम्मती बैठा हुआ है, जारों का कतार रो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा नबी खुद उठ के गया, जिसको आप कहेंगे कि प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जा रहा है। यही तो मेरे नबी की खुसूसियत है, यूं ही कुरान ने नहीं कहा है। अरे सुन, नबी वो है जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। माँ आंखों में आंसू देख सकती है बेटे के, भाई भाई के आंसू देख सकता है, मगर मेरा नबी उम्मती की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता है। मेरे नबी ने मुसल्ला छोड़ा, मुसल्ला छोड़ने के बाद गए और जाने के बाद कहा ऐ मेरे उम्मती क्या बात है, ऐ सहाबी क्या बात है, क्यों रो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह एक बात है, वो बात मैं आपसे अकेले में करना चाहता हूँ। मेरा नबी मस्जिद के कोने में गए और जाने के बाद खड़े हो गए। एक सहाबी रसूल हैं, अदब के साथ खड़े हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा रंग देखिए कितना काला है, और काला ही नहीं है, मेरे चेहरे पर चेचक के दाग हैं। हाँ, मेरे नबी ने कहा हाँ ऐ मेरे उम्मती, मैं तेरा चेहरा भी देख रहा हूँ, मैं तेरे चेहरे पर दाग भी देख रहा हूँ, तू काला भी है और साथ साथ चेचक के दाग भी हैं, तेरा चेहरा बदसूरत हो गया है। कहने लगा हुजूर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, इतनी बड़ी परेशानी आई है, इतनी बड़ी दुश्वारी आई है, मदीने का मैंने कोई घर नहीं छोड़ा, मदीने का मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ मैं अपना रिश्ता लेकर नहीं गया, मगर मुझे सब ठुकरा देते हैं। कोई कहता है काला है, कोई कहता है मुंह पर चेहरे के चेचक के दाग हैं, कोई कहता है बड़ा बदसूरत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ठीक है ऐ सहाबी सुन बैठ जा। मेरे नबी ने एक पर्चा लिखा और लिखने के बाद एक सहाबी रसूल के पास का इस पर्चे को लेकर जा, और जाने के बाद सहाबी रसूल को ये पर्चा दे दे। अल्लाह अकबर, इसका नाम तालीम इस्लाम है, इसका नाम नबी की हिकमत है, इसका नाम कुरान है और ऐलाने कुरान है, इसी का नाम हदीस है। नबी बोलता चला जाए, कभी कुरान की शक्ल में नबी है, कभी हदीस पाक की
की शक्ल में नबी है। मेरे नबी ने पर्चा लिख दिया। जानते हैं मेरे नबी ने कहाँ पर्चा लिखा? अल्लाह अकबर। तारीख ये बताती है कि उस वक्त मदीने में एक इतनी बच्ची खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि जिसके हुस्न के चर्चे मदीने की गलियों में चल रहे थे कि फला की बच्ची बड़ी हसीन है, फला की बच्ची बड़ी खूबसूरत है, वो रोजेदार है, नमाज भी पढ़ती है, अल्लाह अकबर, पर्दे वाली है, हया वाली है। अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी बच्चियां सुन रही हैं तो सुने, मदीने में भी हया के प्रचार हुआ करते थे और मदीने में भी पर्दे के प्रचार हुआ करते थे। आज हमारी गलियों में बेपर्दगी के प्रचार चले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमारी बच्ची ही नहीं, बच्ची से ज्यादा इसके लिए मुजरिम अगर कोई है तो उसका माँ बाप है, जो बच्ची को बेपर्दा कहीं पर भेज रहा है। सहाबी रसूल ने पर्चा लिया, लेने के बाद गए और जाने के बाद कहा, ए फला सहाबी सुन, तेरे नाम मेरे आका ने पर्चा दिया है। उन सहाबी ने पर्चा लिया, पर्चे को लेने के बाद पढ़ते हैं, पर्चे के अंदर लिखा था, ऐ सहाबी रसूल सुन, तेरी बच्ची के साथ मैंने फला इब्ने फला का रिश्ता तय कर दिया है, मैंने फला इब्ने फला का रिश्ता तय कर दिया है। ये सहाबी रसूल है, नबी की बारगाह में बैठने वाले लोग हैं, नबी की बारगाह में तालीम लेने वाले लोग हैं। मुस्कुराकर पर्चे को ले लिया और लेने के बाद जब घर के अंदर गए, जाने के बाद एक कोने में बैठ गए। आंखों से आंसू चल रहे हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। उतने में वही बेटी आ गई जो बाप के दिल का सुकून हुआ करता है। हजार लड़के घर में हो लेकिन ईमानदारी यही है और वही सच्चा बाप है कि जब घर में घुसता है तो बेटी के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करता है। और वो बाप काबिले दाद है जो बेटे को अलग रखता है, लाने वाला तोहफा पहले बेटी के हाथ पर दे दिया करता है। इसलिए कि सुनो, मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी के घर में सब थे, लेकिन मेरा नबी जब बाहर से आता था आवाज देता था, मेरी लाडली फातिमा कहाँ है, मेरी लाडली ज़ैनब कहाँ है, मेरी लाडली ये कहाँ है। बच्चियों को आगे बुलाकर मेरा नबी तोहफा दिया करता था। है रसूल पाक के उम्मतियों, जीने वालों सुनो, जीने का तरीका ये है, लाखों का इनाम लाना तो घर के अंदर दाखिल होने के बाद बच्ची के हाथ पर रख देना, इनाम बच्ची के हाथ पर हो और ये सर माँ के कदमों में ले जाके रखना। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। सहाबी रसूल हैं, बेटी के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू आगे, रोने लगे। मेरी बेटी इतनी हसीन है, जिसके साथ रसूल पाक ने रिश्ता कायम किया है, उसके चेहरे पर दाग हैं, वो तो काला है। बेटी कहने लगी, अब्बा हुजूर क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कहा, बेटी तू मदीने की सबसे खूबसूरत बच्ची है, सबसे हसीन बच्ची है और जिसके साथ अल्लाह के नबी ने तेरा रिश्ता तय किया है वो सबसे ज्यादा मदीने में काले हैं, उनके चेहरे पर दाग हैं। बेटी मुस्कुराने लगी। कहा, अल्लाह के नबी ने पैगाम किसके जरिए से भेजा है? कहा, ये पर्चा है। बेटी ने पर्चे को लिया, लेने के बाद होठों से लगाया, लगाने के बाद अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहती है, अरे अब्बा हुजूर एक बात सुनिए, आप ये देख रहे हैं कि मेरा रिश्ता किससे हो रहा है, मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि रिश्ता लाने वाला कौन है। तो आए मेरी बच्चियों, आए मेरी बहनों, सुनो, लड़का बहुत खूबसूरत नहीं हुआ करता है जो तुम्हें सूट और बूट में नजर आ रहा है। लड़का वही खूबसूरत है जिसकी पेशानी सजदे में झुकती है, जिसके हाथों में कुरान है, जिसके सीने से कुरान लगा हुआ है। अब आप ये ना समझें कि मैंने सिर्फ मौलाना लोगों के लिए बोल दिया है कि अपनी बच्ची सिर्फ मौलाना को देना, मतलब मौलाना नहीं है। मतलब ये है कि जो साहिब शरीयत है, इस्लाम से मोहब्बत करता है, उसको तुम पसंद करो। कोई न कह दे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप ईमानदारी से सोचें तो आप खुद सोच सकते हैं आज हालात कितने खराब हो चुके हैं, आज हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये उलमा बैठे के हैं, मैं आलिम हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, एक आलिम की शान ये है, एक आलिम का रुतबा ये है। आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं। एक आलिम का मर्तबा इतना है कि वो अपने को ही नहीं बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों की बख्शिश करेगा, 7 पीढ़ियों
पीढ़ियों की। 7 पीढ़ियां किसको कहते हैं? आपकी जबान सूख जाएगी, नाम लेते लेते 7 पीढ़ियों के नाम नहीं ले पाएंगे। मेरा बाप है, मेरे बाप के ऊपर दादा है, दादा के ऊपर परदादा है, परदादा के ऊपर अकड़दादा है, उसके ऊपर लकड़दादा है। 7 पीढ़ियों को जो बख्शवा दे उसी को आलिम कहते हैं, और 3 पीढ़ियों को जो बख्शा दे उसी को हाफिज़े कुरान कहते हैं। तो हम क्या जाने मर्तबा क्या है आलिम का, दुनिया क्या जाने हाफिज किसको कहते हैं। अपने आप बच्चे को पढ़े आते हो। एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर लूं, उलमा खूब जानते हैं। हमारे पास जब कोई बच्चा आता है तो अच्छे से चेहरा धुला हुआ नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, जैसा नींद में था वैसे ही उठाकर भगा दिया गया, मदरसा का ऐलान हो गया है चला जा। और थोड़ी देर के बाद अब स्कूल ले जाना है, बाप भी बिस्तर छोड़ रहा है, माँ भी बिस्तर छोड़ रही है, माँ उधर गैस चालू कर रही है, बाप इधर बेटे के कपड़े सजा रहा है, कपड़े पहना रहा है, और पूरी आनो बान के साथ इसने कपड़े पहनाए, किसी ने मोजे पहनाए, किसी ने टाई लगाए, किसी ने ये किया, किसी ने बाल समारे, और उसके बाद गाड़ी पर बिठाला, और बिठाने के बाद अब लेकर चले हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, या अल्लाह, इसकी तो सब हिफाजत कर रहे हैं, बाप अलग हिफाजत कर रहा है, माँ अलग हिफाजत कर रही है, बहन अलग हिफाजत कर रही है, कोई मोजे पहना रहा है, कोई टाई पहना रहा है, कोई कपड़े पहना रहा है। एक मदरसा है, मदरसे के अंदर जब बच्चा जाता है उसकी कोई तैयारी नहीं है, पर्दे गैब से आवाज आई, खुदा की बारगाह से दुनिया में ये गैब से आवाज गूंजी, ऐ दुनिया वालों सुनो, दुनिया की तालीम के लिए लोग दुनिया वाले तैयार करते हैं, और जब एक बच्चा चलता है तो जिब्राइल का हाल ये है कि नीचे भी पर होता है, ऊपर भी पर हुआ करता है। और जानते हैं, अब मैं उलमा के हवाले से कह रहा हूँ, जब बच्चा कुरान लेकर चलता है, फरिश्ते का पर नीचे है, एक ऊपर है, या अल्लाह आखिर क्या है? तो दुनिया के अंदर 2 चीजें फरिश्ता बताता हुआ चलता है। क्या लोगों सुनो, कुरान को जो सीने से लगा के चलता है उसका मर्तबा ये है कि उसका तलवा है, फरिश्ते का पर बिछा हुआ है, और उसकी हिफाजत का आलम यह है कि ऊपर से भी पर चल रहा है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ, काबिले दाद है वो बाप, बड़ी मुबारक है वो माँ जो अपने बच्चे को सीने से कुरान सजाकर मदरसे को रवाना कर दिया करती है। और सुनिए, कब्रिस्तान में जाने के बाद अगर कोई माँ मुस्कुराती है तो वही मुस्कुराती है जिसका बच्चा इल्म का ताज लेकर दुनिया के सामने चला करता है। दुनिया की अपने औलाद के लिए क्या नहीं कर रही है। ऐ लोगों सुनो, इंजीनियर अलग खड़ा रहता है, मास्टर अलग खड़ा रहता है, बड़े से बड़ा अलग खड़ा रहता है। एक बेटा वो है जो 1 लाख महीने में दे रहा है, एक बेटा वो है जो 2 लाख महीने में दे रहा है, एक बेटा ये है जो सिर्फ 10,000 लेकर आ रहा है। आज लोग ये पूछ लेते हैं, हजरत आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा तनख्वाह मुझे तो नहीं मालूम है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लोग मुझे देते रहते हैं और मैं खाता रहता हूँ, जिंदगी चलती रहती है। अल्लाह का ये शुक्र है, न गिनने के लिए 1 लाख है, न गिनने के लिए 2 लाख है, मगर इतना जानता हूँ। कहने लगे क्या जानते हैं? मैंने कहा कब्रिस्तान के अंदर मंजर देख लीजिए, 1 लाख वाला अलग खड़ा है, 2 लाख वाला अलग खड़ा है, 3 लाख वाला अलग खड़ा है, मगर 10,000 वाला सिरहाने खड़ा है। वो ये खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि अब क्या होगा, मगर 10,000 वाला कहता है, ऐ मेरे रब ये मेरी माँ है, इसके गुनाहों को माफ कर दे। ऐ मेरे रब ये मेरा बाप है, इसके गुनाहों को माफ कर दो। दुनिया से जा रहे हो तो जाते जाते अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ कर जाओ, ताकि यहाँ भी कामयाब रहो, वहाँ भी कामयाब रहो। ये महफिल है सुल्तानुल औलिया की, ये महफिल है मेरे गौस की। कौन नहीं जानता कि जाओ मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं। अल्लाह अकबर। गौसे समदानी किसको कहते हैं? शाह वैज़ा लामकानी किसको कहते हैं? मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ दोनों चीजें हैं मैं बयान कर रहा हूँ। ये अल्लाह का डर है जो अभी तक मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब सच्चे कैसे हुआ करते हैं? सच किसको कहा करते हैं?
आइए मैं आपके सामने अर्ज करूं, सैयदना सरकार गौसे आजम जिस वक्त गीलान में पैदा हुए, उलमा के मुंह से आपने सुना होगा कि शहर में नहीं, इलाके में नहीं, बल्कि आप एक गांव में पैदा हुए थे और उस रात में उस गांव में 1100 लड़कों ने जन्म लिया था। कितने लड़कों ने जन्म लिया? 1100। यानी आपकी तारीख में बयान करूं कि जिस वक्त गौसे आजम गीलान में पैदा हुए थे उस वक्त गीलान अरनी कितना बड़ा नहीं था, लेकिन उसी रात में गौस की पैदाइश ने रब ने ये तोहफा दिया था कि एक रात में 1100 लड़कों ने जन्म लिया। और इतना ही नहीं, तारीख पढ़ो, लिखने वालों ने लिखा है 1100 लड़के पैदा ही नहीं हुए थे, बल्कि आगे चल के 1100 अपने वक्त के वली भी बनाए गए थे। आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े लोग सोचने पर मजबूर हैं, हमारी गरीब कौम है, हम तो बहुत गरीब हैं, और वाकई में हम लोग बहुत गरीब हैं। घर में गुस्सा हो तो इमाम पर निकाला जाए, बाजार में गुस्सा हो तो मुअज्जिन पर निकाला जाए। कहाँ है मुल्ला जी, किधर गए? अभी तक मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाई। मैंने भी तड़प कर कह दिया पहले घर का हाल देख लेते, अभी तक वहाँ सब सो रहे हैं, झाड़ू नहीं लगी है। फरिश्तों के लिए अभी दरवाजा भी नहीं खोला गया है, मस्जिद का दरवाजा तो कम से कम मुअज्जिन ने खोल दिया है। हकीकत यही है, आज 10 बजे तक हमारे दरवाजे बंद रहते हैं, औरतें भी शान से सोती हैं, शौहर भी शान से सोता है। यही तो इमाम और मुअज्जिन है कि पूरे शहर के लिए रहमत के मस्जिद के दरवाजों को खोल दिया करता है, जिसको तू आज हकीर समझ रहा है। अरे सुन, एक आलिम को तूने हकीर अगर समझा तो खुदा की कसम एक आलिम का नाम गौसे आजम भी है, एक आलिम का नाम ख्वाजा भी है, एक आलिम का नाम नबियों का नबी भी है। इसलिए कि मेरा नबी जहाँ है वहीं आलिमों का सरदार भी तो मेरा नबी है। इसलिए कि आलिमों का सदका, आलिमों को नबी का सदका मिला है, तब ये इल्म वाले कहला रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। गिलान में मेरे आका पैदा हुए, रब ने ये तोहफा दिया, 1100 बच्चे पैदा हुए, 1100 वली बने गए। और थोड़े दिन के बाद जब 18 साल की उम्र हुई, सैयदना गौसे आजम खुद कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ। मैं एक गली से जा रहा था, जाते जाते मेरे सामने से गाय निकली और मैं गया। मैंने बचपन के लिहाज से गाय की पूंछ पर हाथ रख दिया, और जैसे ही गाय की पूंछ पर हाथ रखा, गाय ने पलट कर कहा, अब्दुल कादिर क्या कर रहे हो? है कोई आज ऐसा जो ये कहता है कि हम नबी के बराबर हैं? अरे गौस तो वो है जिससे गाय भी बात कर रही है, बैल भी बात कर रहा है, भैंस भी बात कर रही है। तुम वो हो तो तुमसे अच्छा इंसान बात नहीं करता है, तुम गौस के बराबर क्या हो सकते हो? बराबर क्या हो सकते हो? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 साल की उम्र है, गली से जा रहे हैं, आपने गाय की पूंछ पर हाथ रखा, गाय ने पलट कर कहा, अब्दुल कादिर तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए। गौसे आजम ने कहा मतलब ये है कि तुम जानवर से खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, बल्कि मखलूक को तहजीब देने के लिए पैदा किए गए हो। अल्लाह को अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहां से निकले और निकलने के बाद अपनी माँ के पास आए और बैठ गए। कहते हैं, माँ अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ बड़े बड़े मदरसे हैं, अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलूँ, आज का तरक्की याफ्ता दौर है। आजकल कहूँ तो मान लीजिएगा मोबाइल की दुनिया है। और आज के अफसोस की बात, सूफी रिजवान साहब के पास से मैं एक जुमला ले रहा हूँ, गोया कि इनकी सलाहियतों से मैंने एक जुमला चुराया है। आजकल मैंने एक चीज़ देखा है, मोबाइल पर एक न्यूज़ डालते हैं और न्यूज़ डालने के बाद कहते हैं आप इतने लोगों को शेयर कर दीजिए। आप शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह इतने लोगों का आपको सवाब मिलेगा, इतनी इबादतों का सवाब मिलेगा। जब मैं उनके घर तक गया तो जाने के बाद पता ये लगा, ये वो लिख रहा है जो सवाब का कायल नहीं है, ये वो लिख रहा है जो इसाले सवाब को मानता नहीं है। आजकल उलमा के हवाले से दे रहा हूँ, आजकल एक वीडियो चल रहा है, जानते हैं आप कौन सा वीडियो है? हमारी सरहद को पार कीजिए, पाकिस्तान में पहुँच जाइए। पाकिस्तान में एक बड़े आलिम हैं अपने आप को कहलाने वाले, हमारे आलिम नहीं हैं, वो किसी और अकीदा के मानने वाले हैं, जिनका नाम तारिक जमील है। मोबाइल पर बहुत बड़ी उनकी दुनिया है, बड़े लोग फॉलो करने वाले हैं। उनके लड़के ने अभी खुदकुशी कर ली, जिसका नाम, उनके लड़के ने खुदकुशी कर ली।
अपने आप को गोली मार ली। अब गोली मारने के बाद वो छोड़ दीजिए, उसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं जो मसला बता रहा हूँ वो आप जहन में रख लेना, आगे शेयर मत करना, अपने दिल में बिठा लेना, इसलिए कि जो चीज शेयर कर दी जाती है वो चली जाती है और जो यहाँ बिठा ली जाती है वो हमेशा कायम रहा करती है। तारिक जमील साहब का लड़का जब मरा और मरने के बाद तारिक जमील साहब खड़े हुए, जनाजे के पास खड़े हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे। उलमा ने पकड़ लिया, अभी तक तो फतवे ये दिया करे, अभी तक तो यही बोला करे कि ये सुन्नी क्या करते हैं कब्रों पर खड़े रह रह कर, ये सुन्नी क्या कर रहे हैं हाथों को उठा उठा कर। अब जब तुम्हारा बेटा मरा है तब तुम्हें कैसा याद आया है जिसके लिए दुआ कर रहे हो? फर्क ये है कि तुम अपने बेटे के लिए दुआ करते हो, सुन्नी उलमा अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए दुआ करते हैं। दो ही दिन का फर्क था, सिर्फ 2 दिन का। पहला दिन मिसाल के तौर पर सनीचर को कहने वाले ने कहा एक इन्हीं की जमात का आलिम है, कहता है 10वां हराम है, 20वां हराम है, 40वां हराम है, बरसी हराम है। और दूसरे दिन ही तारिक जमील साहब खड़े हो गए और कहने लगे मेरे बेटे का तीसरे दिन कुरान खानी का प्रोग्राम रखा गया है। फर्क इतना है, तुमने ये कहा कुरान खानी का प्रोग्राम रखा गया, हमने ये कहा है तीजे का प्रोग्राम रखा गया है। लफ्जों में तो फर्क हो गया, माने में कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए कि हम तीजे में कुरान पढ़ते हैं, 20वें में कुरान पढ़ते हैं, 10वें में कुरान पढ़ते हैं। और तुम कहते हो हम कुरान पढ़ने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, हमने तीजे के नाम पर बुलाया तो फतवा, 20वें के नाम पर बुलाया तो फतवा। तुमने अपने बेटे के लिए लोगों को जमा कर लिया तो कोई फतवा नहीं। कहाँ गए दारुल उलूम देवबंद के वो मुफ्ती जो आज कल ये फतवा लगा रहे थे कि 10वां न करना चाहिए, 20वां न करना चाहिए? बरेली वाले ने कहा अबे बेवकूफ सुन, 10वां किसी और चीज का नाम नहीं है, 10वां है तो कुरान पाक के पढ़ने का नाम है। 10वां भी किया जाएगा, 20वां भी किया जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए बाबा कंबलपोश, सरकार की आमद, गौसे आजम की आमद, सरकार की आमद, सुल्तानुल औलिया। और आजकल ऐसा हो गया है, मैं गौसे आजम की सवाने उलमा कराम के बयान से कर रहा हूँ। आइए मैं आपके सामने आज कर, आजकल चपालोसों की कोई कमी नहीं है, मौलवी खुद चपालोस हो गए हैं। अगर मस्जिद का सदर थोड़ा ताकतवर है तो उसके आगे सर झुक जाया करता है, मस्जिद का सेक्रेटरी टाइट है तो पता ये चला कि इमाम साहब का साफा कदमों में रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि सदर साहब नाराज हो जाएं, फला साहब नाराज हो जाएं। लेकिन यकीन रखिए वो और आलिम होंगे, वो किसी और भट्टी में पकने वाले लोग होंगे जिनके अंदर कच्चापन होगा। हम रजा की भट्टी में पकने वाले लोग हैं, हमारे अंदर कल भी कच्चापन नहीं था और हमारे अंदर आज भी कच्चापन नहीं है। आखिर क्यों नहीं, इसकी वजह सुनिए। बगदाद की धरती है, हमारे गौसे आजम है, गौसे आजम घर छोड़कर बगदाद में पढ़ने के लिए आए और पढ़ने के लिए 18 साल की उम्र में आए। जब 23 साल हो गए, थोड़े दिन पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते गौसे आजम खुद कहते हैं मैंने सारे बगदाद का मुआयना किया, मैंने सारे बगदाद को देखा तो क्या देखा, बनु अब्बास की हुकूमत चल रही है और बनु अब्बास का बादशाह जहां पर बैठता है इधर से 12 मौलाना बैठे हैं, इधर से 12 मौलाना बैठे हैं। गौसे आजम खुद कहते हैं और मैंने ये देखा कि वो मौलाना अल्लाह को भी भूल गए, रसूलुल्लाह को भी भूल गए, सारी चीजें भूल गए, कुरान भी भूल गए। इधर से वो बादशाह की तारीफ कर रहा है, इधर से ये बादशाह की तारीफ कर रहा है। कोई कहता है मेरा आका बादशाह है, कोई कहता है मेरा मौला बादशाह है। गौसे आजम कहते हैं मैंने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, ऐ परवरदिगार मैं ऐसे शहर में नहीं रह सकता जहां पर उलमा ही चापलूस हो गए हैं, उलमा खुद पैसे की पूजा कर रहे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार मैं ऐसे उलमा के बीच नहीं रह सकता। मैं चला गया जंगल में और जाने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक गौसे आजम जंगल में रहे और 40 दिन गौसे आजम ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलूं, जुमला दे रहा हूं, इंशाअल्लाह तबीयत बाग हो जाएगी। मेरे घर में अगर कोई बच्चा नाराज हो जाए, माँ मनाती है, बाप मनाता
आता है, भाई प्यार करता है और नहीं माना तो शहर का मुअज्जज आदमी लाया जाता है, मेरा बेटा भूखा है इसको खाना खिला दिया जाए, मगर ये गौस है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, ये मीरे मीरा है, ये पीरे पीरा है, विलायत जिसमें नाज करे सैयदना शेख गौसे आजम है। 40 दिन तक नहीं खाया, रब ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर कुछ तो खा ले, अब्दुल कादिर कुछ तो पी ले। अल्लाह को अकबर। दुनिया के वो और बच्चे हैं जिनके माँ बाप खिलाते हैं, मेरा गौस वो है कि मेरे गौस को मेरा रब खिलाता है। रब ने कहा है गाय अब्दुल कादिर तुझे यहाँ नहीं रहना है, तुझे बगदाद जाना है, शराबियों को संभालना है, बियाजियों को संभालना है, जानियों को संभालना है। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी सुन, मैंने तुझे इसलिए नहीं पैदा किया है कि तू जंगल में रहे, मैंने इसलिए पैदा किया है बगदाद में जा और इस्लाम का बोलबाला कर दे, इस्लाम का सर बुलंद कर दे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बगदाद में आ गए। आने के बाद आपने देखा, आप खड़े हुए, रात में ख्वाब में क्या देखते हैं, आका तशरीफ लाए और लाने के बाद कहते बेटा अब्दुल कादिर जिलानी तूने पढ़ भी लिया है, तूने लोगों को पढ़ा भी दिया है। एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा हो जाएगा हमारे और आपके भी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मदरसा पढ़ा ही नहीं है, मदरसा पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि मदरसा कायम भी किया है। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 1 साल के बाद जब बच्चों को दस्तार देते थे तो कम से कम 3000 आलिम को एक वक्त में दस्तार 3000। तो मदरसा गरीबों का नहीं है, मदरसा जो इतने बड़े बड़े रईस आते हैं, जानते हो वो कितना बड़े रईस है हमारा अब्दुल कादिर जिलानी, कि जिस वक्त आप कपड़े पहन कर निकलते थे शहर में तो बादशाह भी पूछने पर मजबूर हो जाता है अब्दुल कादिर जिलानी कौन सी मार्केट से कपड़ा लाए हो। जब मेरा गौस जूता पहन कर निकलता था तो दुनिया के ताजदार भी पूछा करते थे अरे अब्दुल कादिर जिलानी इतना इतना उम्दा जूता कौन सी फैक्ट्री बनाती है। मुस्कुरा के इरशाद फरमाते थे ऐ लोगों तुमने मेरा जुब्बा देख लिया, ऐ लोगों तुमने मेरे जूते देख लिए, लेकिन इसके पीछे की हिकमत नहीं देखी। कहा क्या हिकमत है? कहा हिकमत ये है कि जब मैं अपनी खानका से जूते पहन कर निकलता हूँ शहर में ढूंढता हूँ गरीब का घर कहाँ है, गरीब का घर कहाँ है, और जब गरीब के घर पर पहुँचता हूँ तो अपना जूता उतार कर रख देता हूँ। जो जूता आज मैंने पहना है कल वही गरीब जूता पहन कर निकल जाया करता है। अब्दुल कादिर कोई चीज अपने लिए नहीं पहनता है तो सिर्फ गरीबों के लिए पहना करता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रात में सोए हैं, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। मौजू बहुत लंबा है, उन्वान बहुत बड़ा है, इसलिए कि बहुत बड़े की बात है तो उसके लिए बहुत बड़ा उन्वान साबित होता है। हमारी ज़बानें छोटी हैं, हमारा इल्म छोटा है, हमारा तकवा छोटा है। खुदा के कसम उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम तो वो है कि बगैर वजू के नाम लेना भी बेअदबी है। अल्लाह अकबर। रात में सोए, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए का बेटा अब्दुल कादिर, कहा या रसूल अल्लाह, कहा तकरीर किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर वो चीज़ है, ये इतना बड़ा रब का फजल है, खुदा की कसम ये मेहनतों से नहीं बल्कि रब के फजल से ये चीज़ मिला करती है। अल्लाह के नबी ने कहा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद अर्ज करते हैं कि खुद इरशाद फरमाते हैं मैं मिंबर पर बैठा जिस वक्त तकरीर करने के लिए तो मेरे सामने 3 आदमी थे। एक मेरा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक था और दूसरे और सुनने वाले थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे ने जब मजमा देखा थकने के बाद सोचने पर मजबूर हो गए, अल्लाह अकबर, बैठने वाला इतना बड़ा है, मजमा इतना छोटा है। उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि ज़मीन पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, बोलने वाला भी आसमान पर है, सुनने वाले भी आसमान पर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जुमला सुना नहीं है। आप खुद बता दीजिए कितना भी पावर होगा आपके अंदर मगर उड़कर आसमान नहीं छू सकते हैं। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है कि जब चाहते हैं तो आसमान की बुलंदियों पे जाते हैं और जब चाहते हैं तो दुनिया के अंदर आ जाया करते हैं। आपके बेटे ने कहा नजर उठी तो मैंने देखा बहुत बड़ा मजमा है, मैं बेहोश हो गया। मेरे अब्बा ने उठाया, उठाने के बाद होश में आया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा बेटा बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे
کہ वली बात ये है कि मैंने देखा सामने कोई नहीं है, ऊपर बहुत बड़ा मजमा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जितना ऊपर मजमा है थोड़े दिन के बाद बगदाद के मैदान छोटे पड़ जाएंगे, इससे ज़्यादा मजमा नजर आएगा। और लिखने वालों ने लिखा है, पढ़ने वालों ने पढ़ा और लोगों को सुनाया है। एक एक वक्त में तकरीर गौसे आजम करते थे तो 3 लाख का मजमा हुआ करता था। 3 लाख का मजमा किसको बोलते हैं? बड़े से बड़ा मंत्री, बड़े से बड़ा संतरी आ जाए उसके लिए किराए पे लोग खरीदे जाते हैं। ये अल्लाह का वली है कि मोहब्बत में लोग खींचे चले आया करते हैं। अल्लाह अकबर। 3 लाख का मजमा है। आज 1000 आदमी आ जाए, हमारे पास इतनी आवाज नहीं, इतनी ताकत नहीं। अगर ये माइक ना हो तो पूरे मजमे में आवाज नहीं पहुंचा सकता, मगर गौस के लिए न माइक है, न कोई मशीन है, न कोई नई टेक्नोलॉजी है। अगर है तो मेरे गौस की जबान है। 3 लाख का मजमा एक साथ तकरीर को सुनता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपके सामने इन अल्फाजों पर अपनी बात को ख़त्म कर दूं। मौजू बहुत लंबा है। मेरी माँ भी आई है, मेरी बहनें भी आई हैं। मैं उनको इस कॉन्फ्रेंस से, मैं उनको एक जलसे से खबर दे रहा हूँ, अपने कानों में सुने, दिल के अंदर सजा कर ले जाए। गौसे आजम ने और गौसे आजम की माँ ने जब अपने बेटे को रवाना किया था बगदाद के लिए तो एक नसीहत की थी, बेटा सुन, सब कुछ हो जाए मगर झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आज मसला इतना खराब हो गया है, झूठ ना बोलो तो काम नहीं चलता है, चुगली ना करो तो काम नहीं चलता है, गीबत ना करो तो काम नहीं चलता है। कल औरतें बदनाम थी कि 4 औरतें जहाँ बैठती हैं वहाँ गीबत करती हैं। मैं कहता हूँ वो तो 4 बैठ कर करती हैं। आदमियों का हाल ये हुआ 2 बैठते हैं तो लोगों को गीबत करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह को अकबर। आओ मैं आपके सामने आज करूँ। मेरी माँ अगर तू सुन रही है, बेटे को घर से निकालना तो यही कहना, बेटा कहीं भी जाना तो झूठ मत बोलना, बेटा जाना तो नमाज मत छोड़ना, बेटा जाना तो रोजा मत छोड़ना। मगर बात दरअसल ये है, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ रही है तो बेटे को क्या दर्श देगी? माँ खुद नहीं सच बोल रही है। बहू और माँ का इतना झगड़ा चल रहा है, इतना झगड़ा चल रहा है घर के अंदर। बहू सोचती है सास न रहे, सास सोचती है बहू न रहे। अगर वक्त मिल जाए तो पता चला एक दूसरे पर हमला कर दे। मगर अरे मेरी माँ सुनो, अरे मेरी बहनों सुनो, सबको बहू बनना है, सबको सास बनना है, सबको ननद बनना है, सबको भाभी बनना है। लेकिन अगर ये किरदार रहेगा तो काम ऐसे नहीं चलेगा। किरदार ऐसा होना चाहिए, एक माँ को छोड़ कर आई है, सास तेरी दूसरी माँ हकीकत में कहला रही है। माँ का तू अदब करना सीख ले। और अरे मेरी माँ सुन, तेरा भी जिम्मेदारी है, बहू को बहू समझ कर नहीं, बहू को बेटी समझ कर अपने सीने से लगा ले। घर की खुराफात खत्म हो जाएगी, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेटों को नसीहत करना। और बात दरअसल ये है, गौसे आजम ने एक मरतबा तकरीर की बगदाद के अंदर, और बगदाद के अंदर तकरीर करते हुए मेरा गौस बोला लोगों के सामने, ऐ लोगों सुनो, एक वक्त ऐसा था कि मेरे हाथ पर 60 बदमाशों ने तौबा की थी, 60 चोरों ने तौबा की थी। मजमा बहुत बड़ा था। मजमे के अंदर एक शख्स खड़े रह के कहता है, सरकार ये तो बता दे कौन सी करामत दिखाई थी, कौन सी करामत दिखाई थी, कौन सा जलवा दिखाया था कि 60 चोरों ने एक साथ तौबा की थी। आपने इरशाद फरमाया 60 चोरों ने तौबा ही नहीं की थी, उनकी तौबा का सदका ये था कि 60 को अल्लाह ने वली भी बना दिया था, अल्लाह ने वली भी बना दिया था। कहने वाला मचल गया और कहने लगा, आए मेरे आका ये तो बता दो आखिर कौन सी करामत थी कि 40 नहीं 60 चोरों ने तौबा कर ली। आपने इरशाद फरमाया कोई करामत नहीं थी, मैंने मुर्दे जिंदा नहीं किया था, मैंने सूरज नीचे नहीं बुलाया था, मैंने चांद नहीं नीचे बुलाया था। मसला ये है कि चोरों के सामने माँ का सिखाया हुआ सबक यानी मैंने सच्चाई को रखा था। सारे लोगों ने ये कहा था मेरे पास माल नहीं है, चोरों ने उनका माल छीन लिया, और मैंने ये कहा था मेरे पास माल है, फिर भी चोरों ने नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा था। सच बोलने वाले ने हाथ बढ़ाया, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, पता ये चला एक सच का सदका इतना है कि 40 नहीं 60 डाकुओं ने तौबा की और सबके सब अल्लाह के बली बना दिए गए। आज तो झूठों की कोई कमी नहीं है, चुगलखोरों की कोई कमी नहीं है। एक वाकया याद आ गया, छोटा सा मैं बयान कर दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, मैदान में बनी इसराइल जमे हैं, हाथ उठा दिए दुआ के लिए, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम मर रही है, जानवर मर रहे हैं,
आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है। गैब से आवाज आई है, महफिल के अंदर एक झूठा बैठा हुआ है, अगर इसको निकाल दिया जाए बारिश होने लगेगी। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा ने कहा था रब इतना बड़ा मजमा है, कैसे पता चलेगा कि झूठा कौन है। रब ने इरशाद फरमाया मूसा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही निकल जाएगा। एक इंसान उठकर जब निकला, लोगों ने देख लिया कि ये झूठा जा रहा है, झूठा निकल गया, बारिश होने लगी। आज तो शहर में 90% झूठे पैदा हो गए हैं और फिर भी दुआ कर रहे हैं कि बारिश होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। याद रखिए जब तक कि ये जबान साफ नहीं होगी, खुदा की कसम कभी दुआ कबूल नहीं होगी। और जब तक कि ये दिल साफ नहीं होगा, कभी दुआ कबूल नहीं होगी। और सुनो, तुम्हारा दिल भी साफ होगा, तुम्हारी जबान भी साफ होगी। एक ही शर्त है, सच्चाई के साथ नमाज अदा करो, कुरान की तिलावत करते रहो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ताकि कब्र में जाओ तो कब्र में कुरान बोले ए फरिश्तों सुनो, ये आम आदमी नहीं है, ये वो आदमी है कि घर में बैठकर इसका बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। ए फरिश्तों सुन लो, ये आने वाला आम नहीं है, ये वो है कि जिसका बच्चा नबी पाक की हदीस पाक पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐ लोगों सुनो, इसीलिए ये जलसे का मकसद था अल्लाह उस मरहूम के गुनाहों को माफ फरमाए जिसके बच्चों ने इतना बड़ा उनके लिए प्रोग्राम सजाया है। हमारे शहर के तमाम मरहूमीन के अल्लाह गुनाहों तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, उम्मत रसूल के गुनाहों को माफ़ फरमाए। एक बात याद आ गई, अगर आप कहें तो शिरीनी भी सामने आ गई है, लंगर भी चल रहा है आजकल। और लंगर के ऊपर से एक बात मुझे याद आ गई है, आजकल लोग कुछ लंगर पर भी बात कर रहे हैं, हमने लोगों से सुना और कानों की सुनी बात कर रहे हैं। कुछ अक्लमंद पैदा हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं 1 लाख रुपया आप लोगों ने लंगर में खर्च कर दिया, 1100 बकरे काट दिए, इतने जानवर जिबा कर दिए, लोगों को खिला दिया, क्या फायदा हुआ। मैंने कहा तुम्हारे लिहाज से क्या करना चाहिए था। कहा हमारे लिहाज से ये करना चाहिए था, इतनी गरीब बच्चियों को अगर शादी हो जाती तो कितना बेहतर होता। मैंने बोला सलाह देने वाला बड़ी अच्छी सलाह दे रहा है, मगर अल्लाह ताला तुझे तनख्वाह के मास्टर साहब हो, 1 लाख रुपया मिल रहे हैं, ये बताओ कि 1 लाख में कितना सदका 1 महीने में करते हो। 1 लाख रुपया और ईमानदारी से पढ़ाई भी नहीं, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है स्कूलों में आज कि बच्चों को ट्यूशन भी भेजना पड़ रहा है। हकीकत तो ये है हलाल कमाई खाओ, या हराम कमाई किसी को पछने वाली नहीं है। आजकल उर्दू स्कूलों के हाल बयान कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आजकल उर्दू स्कूलों का हाल ये हो गया है, पढ़ाई कम है, तबलीग का काम ज्यादा चल रहा है। जिसको देखिए वो मुबल्लिग की हैसियत से बयान कर रहा है। मैंने कहा मास्टर साहब इधर आओ। जब आए मैंने कहा मास्टर साहब तुम्हारा काम तबलीग का नहीं है, जो मौलाना लोग कर रहे हैं उनको ही हमारे मुकाबले में करने दो। बेहतर यह है कि तुम बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। पता ये चला एक मास्टर हाजिर होता है, 3 मास्टरों की हाजिरी लगाता है, 3 मास्टर गायब हैं स्कूल से और तीनों की हाजिरी रजिस्टर पे बराबर चल रही है। ना पढ़ाकर तनख्वाह लेने वालों याद रखो हमारी तो 10,000 है और हमसे 6 घंटे ड्यूटी ली जाती है, 5 वक्त की ड्यूटी ली जाती है। तुम्हें तो गवर्नमेंट 1 लाख दे रही है सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सिर्फ मुसलमानों के नाम पर। लेकिन आओ मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, अरे लोगों सुनो, आओ हम इसी साये में जिएंगे। बात चल रही थी लंगर की, अल्लाह अकबर। जो लोग लंगर जानते हैं और जो लोग बगदाद जाकर आए उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लंगर खाने में जाएंगे बगदाद तो वहाँ पर गौसे आजम का एक कौल लिखा हुआ है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मैंने नेकी की तमाम किताबों को ढूंढ डाला कि सबसे बड़ी नेकी क्या है, सबसे बड़ी नेकी क्या है। मेरी अक्ल ने ही नहीं मेरे इल्म ने ये फैसला किया, ये इस्लाम का फैसला है। सबसे बड़ी नेकी है गरीबों को खाना खिलाना, फकीरों को कपड़े पहनाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिसके नाम पर लंगर लुटाए जा रहे हैं ये वो गौसे आजम कह रहा है। खुदा की कसम, अरे अक्लमंदों साइंसदानों अपनी अक्ल को यही दफन कर दो तो बेहतर है। इसलिए कि अकीदे के आगे अक्ल नहीं चलती है, अक्ल पीछे चलती है, अकीदा आगे चलता है, ईमान आगे चला करता है। जानते हो कौन है जिसके नाम पर हम लंगर लुटा रहे हैं? ये वो है
इसी जुमले पर तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इसी जुमले पर इस कौम का इंतकाल हो गया तो खुदा की कसम जन्नती वो हो जाएगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुतालिक सैयदना हज़रत उवैस करनी ने जब सजदे में सर रखा था और सजदे से सर उठाया था, ये दुआ की थी। उमर भी खड़े हैं, अली भी खड़े हैं, अरे उवैस दुआ करो, नबी ने भेजा है, ये तुम्हारे लिए जुब्बा है, तुम उम्मत के लिए दुआ कर दो। हज़रत उवैस ने दुआ की, अल्लाह की तरफ से ये निदा आई, अरे उवैस सुन, मैंने अपने नबी की तेरी दुआ से आधे उम्मत को माफ कर दिया, बख्श दिया है। अल्लाह को अकबर। सैयद उवैस करनी कहते हैं, अरे मेरे परवरदिगार आखिर पूरी क्यों नहीं? रब ने इरशाद फरमाया है, ते आधी तेरी वजह से और आधी अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्श दूंगा। हज़रत उवैस करनी ने कहा था, अरे मेरे रब कौन है? नबी की औलाद है, आले नबी है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, मजमउल बहरैन कहलाते हैं, नूरैन कहलाते हैं। खुदा की कसम नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, बलियों में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं। मेरा नबी नबुव्वत में बेमिसाल, मेरा गौस विलायत में बेमिसाल। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें